recording has been started. So let's start basically today's topic. So today's topic is like how we install Angular. Okay. So I am again opening the Angular side in front of you. Angular.io. So how to install Angular basically. So if you come back to the official side of Angular and there you say getting started and then you go to setup. So they will tell you there are commands to install Angular. Okay, 1 second. What happened? They changed the side or what? It's loading. Give me a minute. Huh? Yeah, now it has opened. So this is the command. This is the command to install Angular in your system. Okay, it's a framework. What did I tell you is it's a framework. If anyone wants to join, what? Yes, Bindu wants to join again. Okay, so how to install Angular? How to use Angular? So first of all, you need to install it. So did you remember I told you that Angular is a framework, right? So it's a framework. So you need to install this framework. So how are you going to install this framework? So we have commands to install this framework. What kind of command? I mean, we have npm command. Okay. Now question is, what is npm? First. Second thing, what kind of framework it is? Is it a GUI based or CUI based? Team, do you know or did you understand what? No, sorry. Do you know what is GUI based? Like then it will be graphical user interface. Speak little louder. Interface, yes, sir. Speak little louder. Sir, graphical user interface. Okay, which means? Sir, where we can delect the interact with the frameworks or any application. Okay, okay. In graphical mode. Like if we can use mouse. Yeah. But CLI में सर ये use नहीं कर सकते हम command line. How can I term this? No, I'm not talking about CLI. GUI, graphical user interface. Technically इसको कैसे define करोगे? मतलब हम या यूजर जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है? GUI based application. Mouse के through. That is not a definition. My mouse use करके मतलब क्या? हमारे पास क्या होता है सर? Mouse से भी तुम क्या करोगे? Okay, let's go in this direction. If you have a mouse, what you'll do? तो उसको graphical जिसको use कर सकते हैं. Anyone else? Mouse means क्या? When you say mouse means what? So that means कि we can directly directly interact with the like there are various components in an application, sir. Maybe like we have to play in graphical user interface, sir, like. Wait. तो मुझे graphical user interface की definition समझा रहे हो कि GUI means graphical user interface, which means client will be end user will be interacting to application
in a graphical manner. Okay, what I'm saying is graphical manner means what? So one is saying through mouse, but actual में पीछे क्या चल रहा है? What is going behind? मतलब तुम माउस से या टच से तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो एप्लीकेशन में? तुमने अच्छा चलो ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक मेन्यू आया, तुमने माउस से क्या किया उस पर? क्लिक किया सर। क्लिक किया। सो क्लिक क्या है? व्हाट इज क्लिक? व्हेन यू से क्लिक और होवर और सिलेक्शन, सो ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? बटन क्लिक किया समझ में आता है, सुनो, बटन क्लिक किया, इट्स अ क्लिक। होल्ड ऑन, नहीं रिस्पांस नहीं है, ऑपरेटिंग मैंने लिसन टू मी अगेन एंड देन आंसर। ओके, सो बटन पे तुमने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन को तुमने सिलेक्ट किया, क्लिक नहीं किया, सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट, क्लिक। किसी पर तुमने होवर किया तो तुम्हें कुछ मिल गया, रिस्पांस मिल गया, करेक्ट? सो होवर, तो ये क्लिक, सिलेक्ट, होवर, ये क्या है सर? ऑपरेशन इंटरफेस। नो, कमांड। नो कमांड भी नहीं है। आई थिंक सर इंटरफेस है सर। यही तो है ना सर, इसी को इंटरफेस सर, एक्सक्यूज मी सर, इसी को ग्राफिकल यानी कि यही तो है ना, ग्राफिक्स वो हमें देता है कि ये यहाँ पर क्लिक करो। तुमने, हाँ मैं समझ गया तुमने, बट मैं आई अंडरस्टूड, बट प्लीज आई मीन यू नो अंडरस्टैंड, ये तुम्हारी जो ना ये कॉलेज डेफिनेशंस हैं, मतलब हम आईटी में इन टर्म्स को यूज नहीं करते हैं। सो ये क्या हमने क्या कर रहे हैं हम? क्लिक, चेंज, होवर, ये सब क्या है? मैंने क्लिक कर दिया, ये क्या हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, एक्शन है वो, होल्ड ऑन, एक्शन है। एक्शन को हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? प्रोसेस। इवेंट्स है, क्या है ये? इवेंट्स है। क्लिक एक इवेंट है, क्लिक एक इवेंट है, राइट? आपका होवर एक इवेंट है, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन एक इवेंट है, चेंज इवेंट बोलते हैं इसको। ड्रॉप डाउन से जब सिलेक्ट करते हो ना कुछ ऑप्शन, तो उसको चेंज इवेंट बोलते हैं हम, चेंज इवेंट, ऑन चेंज इवेंट। क्लिक जो है वो ऑन क्लिक इवेंट है। सो GUI में वी यूज इवेंट प्रोग्रामिंग। ओके, GUI is event driven programming. GUI means it is event driven programming. Understood or not? यस सर। Completely yes or no? अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। यस सर, अंडरस्टूड। नो डाउट। ये वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो बुक में नहीं होती हैं, या हम इनको ओवरलुक कर देते हैं, बट प्रोग्रामिंग में व्हेन यू डू लाइव प्रोग्रामिंग ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं तुम्हें थ्योरी नहीं चिपका रहा हूं, आई एम नॉट पेस्टिंग एनी थ्योरी इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बेसिकली रिवीलिंग दोज इंफॉर्मेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टेक्निकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। जो तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, उसमें क्या तुम्हें जानना जरूरी है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। ओके, सो GUI इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसका मतलब जब भी कोई GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, जैसे हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे, तो एंगुलर में जो हम क्या बनाएंगे, एंगुलर में वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, करेक्ट? एंगुलर फ्रंट एंड है तो हम पूरा इंटरफेस रेडी करेंगे, राइट? यस सर। करेक्ट, राइट सर। वो इंटरफेस जो हम लोगों के लिए बनाएंगे, जो हम एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंगुलर में बनाएंगे या रिएक्ट में बनाएंगे, तो ये जो इंटरफेस हम बनाएंगे ये GUI बेस्ड होगा या CUI बेस्ड होगा? GUI बेस्ड। GUI बेस्ड होगा ऑब्वियसली, करेक्ट? जो हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं ये क्या होती है? GUI बेस्ड होती है, यस और नो? यस करेक्ट? तुमने कोई ई-कॉमर्स साइट बनाई, तुमने कोई shaadi.com टाइप साइट बनाई, तुमने कोई लॉयर के लिए पोर्टफोलियो बनाया, तुमने तुमने अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया, तुमने naukri.com जैसी साइट बनाई, तुमने कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाली साइट बनाई, कुछ भी, तुमने कोई जिम से रिलेटेड साइट बनाई, कोई मेकअप आर्टिस्ट के लिए कोई प्रोफाइल बनाया, करेक्ट? सो ऑल दीज थिंग्स आर वेब एप्लीकेशंस और वेब पोर्टल। अगर बहुत बड़ा है तो वेब पोर्टल बोलते हैं, छोटा है तो उसे वेबसाइट बोलते हैं या वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, करेक्ट? तो ये हमारी GUI बेस्ड होती है जो हम बनाते हैं। तो यूजर्स पे क्या करता है? यूजर क्लिक करता है, सिलेक्ट करता है, तो मतलब हम यूजर को क्या ऑफर कर रहे हैं? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, GUI बेस्ड एप्लीकेशन। और प्रोग्रामेटिकली हम इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं? इट्स अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। तो तुम जब प्रोग्राम करोगे, अब यूजर का एक लॉगिन पेज है, यूजर के लिए वो लॉगिन पेज है, यूजर GUI CUI नहीं समझता, बट तुम समझते हो। तुम्हारे लिए वो लॉगिन बटन पे जो होगा वो क्या होगा? नाउ टेल मी। एक लॉगिन पेज है, यूजर ने पासवर्ड डाला, यूजर ने, तुमने जो लॉगिन पेज पर, लॉगिन बटन में जो कोड लिखा है, वो तुमने किस
पर लिखा है, तो इसे तुम क्या बोलोगे? सर CLI पर, हाँ, CLI पर लिखा है वो कोड। CLI पर लिखा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो तुमने बटन बनाया है यूजर के सामने लॉगिन पेज पर, तुम उस लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो तुम जो कोड है वो कहाँ लिखोगे? मतलब क्या कोड, क्या बोलोगे उसको? एक्सप्लेन करो, तुम एक्सप्लेन करो बैकएंड सर बैकएंड बैकएंड प्रोग्रामिंग तुम तुम इवेंट बाइंडिंग करोगे। क्या करोगे? इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंड करोगे। और अब मुझे बताओ, आई गेस यू ऑल विल बी एबल टू आंसर, कौन सा इवेंट बाइंड करोगे? सर क्लिक। क्लिक, वेरी सिंपल। अब समझ में आया इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? यस सर। तो लॉगिन पेज पे जो तुम बटन पे क्लिक करोगे, मतलब तुमने क्लिक इवेंट बाइंड किया। तो तुम अपने प्रोग्राम में जो लिखोगे ना, जो कोड लिखोगे, तुम क्लिक इवेंट पे प्रोग्राम लिखोगे, एंड दैट इज व्हाट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज। यस और नो? यस सर। गुड। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज 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 लॉगिन में ही टाइप है, लॉगिन में ही ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, उसमें है कि टाइप है, कई साइट्स पे आपने देखा होगा, लॉगिन के टाइम पे एक ड्रॉप डाउन होता है और वो बोलते हैं एडमिन, कस्टमर, यूजर, क्लाइंट, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं, राइट? तो जब तुम Yes, कोई sir. ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जैसे अच्छा ये भी चलो छोड़ो, रेडियो बटन है, मेल फीमेल, मेल पे डिफरेंट फॉर्म दिखाना है फॉर एग्जांपल, फीमेल पे डिफरेंट फॉर्म दिखाना है फॉर एग्जांपल, करेक्ट? एक एग्जांपल, अबव 18 बिलो 18, ऐसा एक चेकबॉक्स है कि आर यू अबव 18। तो जब यूजर चेक करेगा तो अगर 18 अबव है तो आगे का प्रोसेस होगा, अगर 18 अबव नहीं है, अगर चेक नहीं किया यूजर ने, तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो जो रेडियो बटन जो तुमने फ्लिप किया, कभी इसको सिलेक्ट किया कभी इसको सिलेक्ट किया, तो कौन सा इवेंट होगा तुम्हारे हिसाब से? एज इवेंट, एज ड्रिवन इवेंट। चेंज इवेंट, राइट? यस सर। तो तुम चेंज इवेंट पे अपना कोड लिखोगे, करेक्ट? मेरी बात समझे? यस सर। रेडियो बटन पे कौन सा इवेंट होगा तुम्हारे हिसाब से? आई नो ये बहुत सारे लोगों के लिए चीज नहीं होगी, एंड आई एम ओके विद दैट। हम अभी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इट विल स्टिक इन योर माइंड, ठीक है? तो जो चेकबॉक्स है उस पे तो कोई ऑप्शन चेंज का है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ चेक ऑन है और चेक ऑफ है, तो उसमें कौन सा इवेंट होगा? ओवर। उसमें भी चेंज इवेंट होगा, करेक्ट? क्योंकि आप उसको चेंज कर रहे हो, चेक ऑन से चेक ऑफ कर रहे हो, और अगर चेक ऑफ है तो उसको चेक ऑन कर रहे हो, तो वो भी चेंज है। समझे? समझे? ओके सर। तो what you're doing is you are doing event driven programming. What you will be doing is event driven programming, क्योंकि यूजर को CUI नहीं देते। अच्छा चलो अब CUI पे आते हैं। GUI क्लियर है? यस सर। GUI सबको पता है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। अब आते हैं CUI पे। मुझे CUI की डेफिनेशन से पहले, आई डोंट वांट टू हियर CUI डेफिनेशन, इट इज कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक ही बात है। तो मुझे डेफिनेशन नहीं सुननी, डेफिनेशन मुझे पता है, तुमको भी पता होगी। आर यू ऑल अवेयर ऑफ द डेफिनेशन? CUI या CLI? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, करेक्ट? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब आप जो है फीड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो। तो मुझे सबसे पहले, बिफोर वी इवन जंप ऑन द फुल डेफिनेशन ऑफ CUI और CLI, मुझे एक एग्जांपल बताओ, रियल वर्ड एग्जांपल, नॉट प्रोग्रामिंग एग्जांपल, रियल वर्ड एग्जांपल जो तुमने अर्ली डेज में देखा हो, क्योंकि अब तो सारा ही GUI होता है। कोई रियल वर्ड एग्जांपल जो तुमने अर्ली डेज में देखा हो, जब तुम्हारे पास नए नए मोबाइल्स थे। लो हिंट भी दे दिया, आई हैव गिवन यू द हिंट एज वेल। जब स्टार्टिंग में मोबाइल हुआ करते थे, क्या करते थे हम? बोलो बोलो। Sir, can you repeat, sir? Can you Okay, repeat? repeat one more time. So when you initially started using mobile, correct? जब स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, करेक्ट? उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जब स्मार्टफोन या तो नहीं आए थे या आने शुरू हुए थे। सर कीपैड इज, हाँ कीपैड से नंबर डायल करते थे सर। हाँ, क्या होता था उस टाइम पर? मेरा क्वेश्चन समझ में है या नहीं?
Did you understand my question or no? Yes sir, yes sir. नहीं, किसी ने रिपीट करने के लिए बोला था, तो मेरा क्वेश्चन समझ में है आई थिंक या नहीं? मोबाइल, हम सर मोबाइल से रिचार्ज करते थे तो वो एक कोड होता था, फोन Good. डालते थे। गुड, आगे बोलो। ओके, मैं समझ गया, एंड दिस इज करेक्ट एग्जांपल। डिड यू रिमेंबर दोस डेज कि जब हम एक सर्विस नंबर डायल करते थे तो हमें एक ऑप्शन आता था 1 2 3 4 5 6, याद है? Yes, sir. 1 Yes, get sir. your balance, 2 change your ringtone, 3 change your provider, ऐसे करके बड़े सारे ऑप्शन आते थे। हाँ, 4 stop your caller tune, याद है? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो वो क्या था, हम रिप्लाई में क्या करते थे? हम रिप्लाई में नंबर डायल करके बताते थे, राइट? हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के थ्रू बात करते थे मोबाइल से या सिस्टम से। तो हमारा इंटरफेस क्या था? हमारा इंटरफेस CUI बेस्ड था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्ट? क्या इसमें कोई इवेंट इन्वॉल्व है? No, sir. तो विच मींस CUI बेस में, करेक्ट, कोई भी इवेंट इन्वॉल्व नहीं होता। सो CUI इज नॉट एट ऑल इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, इट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर जो है, एंड क्लाइंट जो है, कैरेक्टर डालेगा, तुम उसे मेन्यू दोगे, वो कैरेक्टर डालेगा। याद है C++ के वो कमांड लाइन प्रोग्राम्स, C++ के प्रोग्राम्स Yes, sir. जिनमें तुम ऑप्शन देते थे 1 add 2 subtract 3 multiply 4 divide, right? Team, you got it or not? Yes, sir. Got it. मैंने तुम्हें प्रोग्रामिंग एग्जांपल बता दिया Yes और sir, रियल वर्ल्ड yes. एग्जांपल बता दिया। ओके, Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. shall we proceed? Yes, sir. So जो एंगुलर का तुम्हारा फ्रेमवर्क है, योर एंगुलर फ्रेमवर्क, दैट इज CLI। CLI मींस अगेन कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब आपको कमांड के थ्रू एंगुलर फ्रेमवर्क को हैंडल करना होगा। बट दैट डजंट मीन, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, दैट डजंट मीन कि जो एप्लीकेशन हम एंगुलर से बनाएंगे वो CUI बेस होंगे। नो, जो हम डेवलप करेंगे वो GUI बेस होगा। हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वी डेवलप वेब एप्लीकेशन इन एंगुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट यस सर। जो हम एंगुलर फ्रेमवर्क से इंटरेक्ट करेंगे, करेक्ट, एंगुलर फ्रेमवर्क से जो हम इंटरेक्ट करेंगे वो CLI बेस्ड होगा या CUI बेस्ड होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो उसका फर्स्ट प्रूफ क्या हुआ? देयर इज नो साइट वेयर यू क्लिक एंड यू से इंस्टॉल एंगुलर। ओके, तुम्हारे पास कोई ऐसी साइट नहीं है जहां पर तुम जाओ और लिखो डाउनलोड और फिर एक सेटअप आ जाए, तुम डबल क्लिक करो और वो सारा एंगुलर को इंस्टॉल कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, नो। करेक्ट, तुम्हें कमांड के थ्रू एंगुलर फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए एंगुलर की इंस्टॉलेशन को पार्क करते हैं और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जंप करते हैं जो इससे पहले होना चाहिए। अब एंगुलर इंस्टॉल करना है मुझे, मैं कैसे इंस्टॉल करूं? मेरे पास जैसे मैंने तुम्हें कहा कि एज आई टोल्ड यू दैट आई डोंट हैव एनी साइट वेयर आई कैन डाउनलोड द फ्रेमवर्क, डबल क्लिक ऑन इट एंड इंस्टॉल इट। जैसे आप अपना कोई गेम इंस्टॉल करते हो, गेम डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, रन करते हो, ठीक है? तुम कोई एडिटर जैसे एटम, सबलाइन, जो भी तुमने काम किए होंगे सॉफ्टवेयर पे, तुम उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, है ना, सॉरी डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो डबल क्लिक करके और फिर यूज करना शुरू कर देते हो। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? करेक्ट। सिमिलरली एंगुलर की कोई साइट नहीं है जहां से, यही साइट है इनफैक्ट, बट एंगुलर का ऐसा कोई सीन नहीं है। वी डोंट हैव एनी डाउनलोडेबल पैकेज फॉर एंगुलर वेयर वी कैन डाउनलोड, डबल क्लिक ऑन इट एंड इट विल इंस्टॉल। नो, वी कैन नॉट डू दैट। तो अब जब ऐसा कोई सीन ही नहीं है, आई डोंट हैव दैट वे, तो हाउ शुड आई इंस्टॉल एंगुलर? मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? एंगुलर कैसे इंस्टॉल करूं? सर कमांड प्रॉम्प्ट से। ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट, बट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कौन करेगा? who will do that? आई थिंक सर विंडोज में प्रीडिफाइंड पैकेजेस होते हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे बताओ इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इंस्टॉल कर सकते Sir, it need a platform first. Sir, हैं? Node. Speak little louder. Sir, it needs a platform first to run. Like sir, Exactly. Node. No, run is a different thing. I'm not, Okay. see, run means you are executing your program. I'm not reached till that point. मैं कह रहा हूँ एंगुलर ही कैसे इंस्टॉल करूँ मैं? मेरे पास कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए. I should be having some mechanism to install. Through command prompt by using commands.
Just Understood. like But which and, command? yes, sir, install is when it comes to Unix, install this. When it comes to Windows, there is npm etc. for this. We will reach first the path by command line, by command prompt, then use some पाथ commands. भी अपना सेट हो जाता है, पाथ भी हमें जरूरत नहीं पड़ती सेट करने की. Okay, so there has to be a package manager. There has to be a package manager जो हमारे पैकेजेस का, लाइब्रेरीज का, फ्रेमवर्क का, जो उनको इंस्टॉल कर सके हमारे सिस्टम पे, जो डाउनलोड कर सके, इंस्टॉल कर सके हमारे सिस्टम पे. करेक्ट. स्पेसिफिकली जो हमारे CLI हैं, कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं, कमांड लाइन लाइब्रेरीज हैं, करेक्ट, उनके लिए वी नीड अ पैकेज मैनेजर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये पैकेजेस जो है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करे. You understood or not? Yes, sir. Understood? जैसे आप बैंकिंग करते हैं तो आपका एक बैंकिंग मैनेजर होता है, राइट? करेक्ट. एक बैंकिंग मैनेजर होता है. आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो वहां पर भी टीचर्स या स्टाफ होता है, करेक्ट. उनके बिना आप अपनी एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. इज इट करेक्ट और नॉट? सिमिलरली जो CLI बेस्ड होते हैं इनके लिए भी हमारे को, या इन पैकेजेस को, या पैकेजेस, लाइब्रेरीज, करेक्ट, फ्रेमवर्क्स, राइट, ये जो ओपन सोर्स, स्पेसिफिकली ओपन सोर्स, ये जो ओपन सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स होते हैं, इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए हमारे पास पैकेज मैनेजर होना चाहिए. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट पैकेज मैनेजर फॉर ओपन सोर्स, open source frameworks, libraries and packages is Node. Okay, Node is a biggest package manager. That is why we use npm, Node package manager. You got my point or not? Yes, sir. Okay, so Node हमारा दो तरह से काम करता है. Node is a very strong tool. Okay, Node is very strong tool. Node हमारा as a server भी काम करता है, which provides our application to run. That we'll discuss later, but I'm just telling you. In Node, basically Node.js is a server, or Node.js behave in different way. Node.js basically helps to run our application. Node.js behave like a server, correct, where our application, the whole full stack development will run. Node will also behave like a package manager, जो हमारी हेल्प करता है सारे पैकेजेस को, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को, फ्रेमवर्क्स को इंस्टॉल करने में, डाउनलोड और इंस्टॉल करने में. ओके, ये क्लियर है? Okay, sir. Is that clear till now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो अब अगर मैं नोड के लिए, चलो ठीक है, मैं एक केस स्टडी देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल. ओके, नाउ यू टेल मी रियल वर्ल्ड में कौन एग्जैक्टली क्या हुआ. ओके, हु विल प्ले विच रोल. उससे पहले थोड़ा सा और एक 30 सेकेंड्स. नोड हमारा सारे, एज अ सेड, नोड विल इंस्टॉल, रन all our open source packages, libraries, right, and frameworks. तो अब इसमें Angular एक फ्रेमवर्क है, नोड इंस्टॉल करेगा, npm पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेगा. React एक लाइब्रेरी है, नोड विल इंस्टॉल इट. Bootstrap, it's a library. Have you heard about Bootstrap? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Node will install it, no problem. Node will install it. Have you heard about jQuery? Yes, sir. Every one of you, jQuery. Yes, sir. Heard about it. jQuery. So Node npm package manager Yes, sir. jQuery को इंस्टॉल करेगा, करेक्ट. सो कोई भी ऐसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी, पैकेज या फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट बेस्ड, तो नोड मतलब npm, नोड पैकेज मैनेजर, उसको इंस्टॉल कर देगा, डाउनलोड भी कर देगा, इंस्टॉल भी कर देगा, करेक्ट. तुम्हारी एप्लीकेशन में, लेट्स लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो तुम्हें अलग अलग साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है. मतलब तुम्हें बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए. तुम्हें रिएक्ट साइट पे जाने की जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए. तुम्हें jQuery पे जाने की जरूरत नहीं है. तुम्हें और किसी साइट पे जाने की जरूरत नहीं है. डिफरेंट पैकेजेस की साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है. डिफरेंट लाइब्रेरीज की साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है. यू गो देयर एंड डाउनलोड. नो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. ओके, अदरवाइज एक एप्लीकेशन में अगर सपोज 50 पैकेजेस हैं, 50 जो कि होते हैं, 50 पैकेजेस हैं या 50 लाइब्रेरीज हैं,
करेक्ट? तो क्या तुम हर किसी की एप्लीकेशन में जाके उसे डाउनलोड करोगे? करेक्ट? इज इट अ राइट वे टू डू? व्हाट इज इट? No, sir. करेक्ट? अच्छा, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करता हूं और फिर लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यू गो टू डॉक्टर, doctor prescribe 10 medicines to you, medicine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on a slip. Okay, you have a prescription list, आपके पास prescription list है 10 medicines की। अब आप क्या करते हो? आप क्या अलग अलग medicines की कंपनीज में या शॉप में जाते हो और वहां से मेडिसिन उठाते हो? ऐसे करते हो? No, sir. तो तुम और प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट लेके कहाँ जाते सर एक मेडिकल, एक केमिस्ट के पास। हाँ? सर एक केमिस्ट के पास। हो? करेक्ट, तुम केमिस्ट के पास जाते हो, करेक्ट? और केमिस्ट, मुझे सीक्वेंस बताना, डोंट शाई एंड टेल मी द सीक्वेंस। जब तुम केमिस्ट के पास जाते हो तुम क्या बोलते हो या क्या करते हो? सर प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट दे देते हैं उसे। We hand over the prescription list to chemist, correct? और क्या बोलते हैं? Give me these medicines, yes or no? यस सर। तब बताओ क्या होता है? सर वो प्रिस्क्रिप्शन देख के Chemist मेडिसिन क्या करता है? निकाल लेता है। यस सर। देन ही विल प्रोवाइड अस द मेडिसिंस। Directly provide the medicine और कुछ नहीं करता वो? सर मतलब सर नहीं, देख कर कि रिपोर्ट कौन सी चेक देखता करता है, है। उससे मेडिसिन हाँ, प्रोवाइड करेगा। सर पहले वो जो है सीक्वेंस में जो उसके अल्फाबेटिकली मेडिसिन लगी होती हैं, वो अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन उसमें से निकालता है। वो पहले मेडिसिन चेक करता है कि है या नहीं है मेरे पास। यस अगर यस है तो वन बाय वन, जैसे पढ़ रहा है ना, मेडिसिन 1 मेडिसिन 2, पहले मेडिसिन 1 देखेगा मेरे पास है, सर्च करेगा है, हाँ है, यस सर। तो उसको उठा के ले आएगा। फिर दूसरी मेडिसिन, फिर तीसरी मेडिसिन, मतलब वो सिक्वेंशियली या जिस भी ऑर्डर में, करेक्ट, वो एक करके मेडिसिन तुम्हारी पकड़ेगा, सर्च करेगा मेरे पास है या नहीं है, और कहां से लेके आता है? क्या वो भी डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है? उसके पास अपनी रिपोजिटरी होती है, अपना, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में गोडाउन बोलते हैं, करेक्ट? यस सर। इस गोडाउन को ही आईटी लैंग्वेज में हम बोलेंगे रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब जहां पर सारा का सारा स्टफ डम्प्ड है। या इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर यस सर यस। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, I'm back. So now you tell me, who is chemist in this case? अब वापस मैप करते हैं, केमिस्ट कौन है? NPM सर। Exactly. Node.js. Correct. नोड पैकेज मैनेजर है, राइट? यस सर। उसकी शॉप को हम बोलते हैं, उसकी शॉप Node.js है, करेक्ट? अभी तो उसके पास केमिस्ट है, यस तो केमिस्ट हो गया हमारा नोड पैकेज मैनेजर NPM, ठीक है? जो उसकी जो गोडाउन हो गया वो हमारी होगी रिपोजिटरी, जो नोड के पास, जो NPM के पास होती है। NPM के पास करीब करीब सारे जितने भी ओपन सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स हैं, उसके पास उसकी रिपोजिटरी होती है, ओके? उसको वो फटाक से तुम्हारे पास डाउनलोड कर देता है। अच्छा ठीक है, अब जिस इन्वेलप में तुम्हारी मेडिसिन पड़ी हैं, वो इन्वेलप क्या है? वो इन्वेलप क्या है? उसको हम बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम, आई नो यू हैव नॉट हर्ड इट बिफोर, तो कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। तो हम इसको बोलेंगे नोड मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि उसमें सारी मेडिसिन पड़ी हैं, सारे पैकेजेस पड़े हैं। एक केमिस्ट ने सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट तुम्हारी पढ़ी और सारी की सारी मेडिसिन जो है लाके एक इन्वेलप में डाल के तुम्हें दे दी, करेक्ट? तो वो इन्वेलप तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे इन्वेलप जिसके अंदर मेडिसिन है, करेक्ट? मेडिसिन बॉक्स और मेडिसिन कंटेनर, कुछ भी। तो हम उसको अपने प्रोजेक्ट में हम उसको बोलेंगे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके सर। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में सोच के बोलना, इस पूरी सिचुएशन में तुम क्या हुए? तो ऐसे पूछता हूं, जब तुम जाओगे अलग अलग साइट्स पे, वन मिनट, जब तुम जाओगे अलग अलग साइट्स पे एंड यू डाउनलोड लेट्स से बूटस्ट्रैप, jQuery, रिएक्ट, तो तुम उसे कहां डाउनलोड करोगे? सिस्टम पे सर। फोल्डर में, एक फोल्डर में, करेक्ट? तो वो फोल्डर तुम्हारा नोड मॉड्यूल फोल्डर हो गया, ओके? वो फोल्डर कहां होगा? सिस्टम लाइब्रेरी।
अच्छा तुम बना क्या रहे हो पूरा, तुम एग्जैक्टली बनाने क्या लगे हो, स्टार्ट क्या करने लगे हो? Module. Project. Some Project. project. प्रोजेक्ट। तो तुम क्या हुए? Project, sir. प्रोजेक्ट। Manager. तुम कौन हुए? प्रोजेक्ट। यू आर अ प्रोजेक्ट एंड यू आर हैविंग नोड मॉड्यूल फोल्डर विद यू। डन? Yes, sir. समझ में आया नोड मॉड्यूल फोल्डर? Yes, नोड sir. मॉड्यूल समझ में आया? npm पैकेज मैनेजर समझ में आया? Yes, sir. यू अंडरस्टैंड npm नोड पैकेज मैनेजर वो क्या करता है, कैसे करता है, क्या करता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे देखते हैं कितना तुमको क्लियर हुआ। अब अगर मैं मेडिसिन लेके वापस जा रहा हूँ और मेरी मेडिसिन लेट्स से डंप हो गई, ओके। सो अगर वो मेडिसिन डंप हो गई, गिर गई मुझसे, तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे? तुम्हारे से मेडिसिन गिर गई, क्या करोगे? सर अगेन केमिस्ट के पास जाएंगे। ओके गुड। और क्या करोगे? एंड सर अगेन रिक्वायर्ड जो मेडिसिन है सर उसके लिए बी टेक्निकल, बी प्रिसाइज। प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट दोबारा से उसको हैंडओवर करोगे, करेक्ट? यस सर। करेक्ट। हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये हम हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते। यस सर। राइट, वी शुड be precise when we are talking, our word should be precise. So we will hand over the prescription list again to the chemist. Similarly, अगर मेरा नोड मॉड्यूल फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूं तो मैं क्या करूंगा, मतलब फिर मुझे पैकेज दोबारा से कैसे मिलेंगे? मैं दोबारा से npm कमांड फायर करूंगा, यस और नो? दोबारा कमांड पे। यस सर। अगर मैं एंगुलर प्रोजेक्ट, एंगुलर CLI फ्रेमवर्क अगर मैं डिलीट कर देता हूँ सिस्टम से, मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से npm कमांड फायर करूंगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? यस। Yes, sir. One last case, then we end and we directly jump on the practical. Okay, suppose 10 medicine के बाद after some days I go to doctor again, और नहीं मुझे याद आया कि अरे नहीं 10 नहीं, एक और 11 मेडिसिन भी थी, करेक्ट? तो मैंने वो 11 मेडिसिन भी वहां पर लिख दी कि उसने मुझे पैरासीटामोल भी बोला। अगेन गो बैक टू केमिस्ट और उसको बोला कि प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट फिर से हैंड ओवर की, एंड आई सेड वो 11 मेडिसिन मिस हो गई, ये भी दे दो, तो वो क्या करेगा? क्या पूछने का मतलब क्या करेगा? आई एम नॉट आस्किंग जनरली। सर वो चेक करेगा कि मैंने कौन कौन सी दे दी है, कौन कौन सी मैंने दे दी है, कौन सी नहीं दी है। एग्जैक्टली। तो जो लास्ट वाली उसने नहीं दी वो सिर्फ वही तुम्हारे को देगा ना, दोबारा से एनवायरनमेंट डाल देगा। यस और नो? यस सर। यस। अब इसको प्रोग्राम में देखते हैं। Let's say मेरे पास सारे पैकेजेस हैं and then I realize I need to install bootstrap also. I need to install bootstrap. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कमांड फायर करूंगा npm install bootstrap node package manager. Hey node package manager install bootstrap. अब नोड क्या करेगा? नोड मेरी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट जहां पर सारे पैकेजेस लिखे हैं उनको दोबारा से पढ़ेगा और वहां पर चेक करेगा जो पैकेज नहीं है या जो मैंने पैकेज बोला है उसे वो इंस्टॉल कर देगा। ओके ओके सर। अंडरस्टूड? तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे प्रोजेक्ट में दिस प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट इज कॉल्ड package.json. मेक सेंस? package.json पैकेज फाइल। हमारे प्रोजेक्ट में इस प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट को बोलते हैं पैकेज फाइल। क्यों बोलते हैं पैकेज? Sir, what is JSON? Leave JSON. That's why I didn't call that one. I'll come to when I come to that topic, then I'll explain it. JSON is again a type of file. Okay, JSON means JavaScript object notation. तो JavaScript की तरह उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होती है। अगेन मैंने कहा जैसे जैसे हम अब थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर JSON, TS ये किस तरह की फाइल्स होती हैं, क्या करती हैं, हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पैकेज फाइल होती है हमारी जो हमारी जैसे हमारी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट है डॉक्टर की, ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट में वी हैव अ पैकेज फाइल। तो नाम समझ में आता है पैकेज फाइल, मतलब समझ में आता है क्यों रखा गया इसका नाम पैकेज? क्लियर होता है इस बात का? आई मीन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका नाम पैकेज फाइल क्यों रखा गया है और नो? I don't know. सर बिकॉज जो भी हमें रिक्वायरमेंट है जिन भी पैकेज की वो सब इसके अंदर जो भी पैकेजेस मुझे चाहिए, करेक्ट, जो भी पैकेजेस मुझे चाहिए
या जो भी पैकेजेस मेरे को इंस्टॉल करवाने हैं वो उस फाइल के अंदर होंगे, पैकेज फाइल के अंदर होंगे। यस और नो? यस सर। करेक्ट। जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट है, प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा, मेडिसिन की लिस्ट होगी कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए। करेक्ट। सिमिलरली पैकेज फाइल में क्या होगा, वो सारे पैकेजेस होंगे जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। अग्री और नॉट? यस सर। Correct? Yeah. Okay. So now we see how we can go ahead and start with it. So as I said, if you see this, again we come back to here. It says it can only be downloaded or installed by npm, Node Package Manager. There is no download button. There is no install button. ये सिर्फ और सिर्फ CLI है और CLI की तरह ही, कमांड लाइन इंटरफेस की तरह ही ये इंस्टॉल भी होगा पैकेज, सॉरी फ्रेमवर्क, एंगुलर फ्रेमवर्क। तो वी नीड अ पैकेज मैनेजर, सो वी आर यूजिंग npm। अब npm पैकेज मैनेजर यूज करने के लिए व्हाट वी नीड node we need node to be installed. So let's see, let's go to nodejs.org, nodejs.org, right? That's a site। और यहां से तुम लोग क्या करो, recommended version जो है ना, recommended, not the latest one, recommended version that you download। ओके, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे। Sir, do we need to download right now, sir? It's already recorded, so I don't think you need that. I have enough tutorials where step by step it shows how you install it. Okay, so as of now you just listen. So Okay, आपने node recommended version पे click किया, nodejs.org पे गए, click on recommended version, it will download such kind of Windows installer package। अगर आपके पास MacBook है तो MacBook वाला वर्जन जो है वो आपको इंस्टॉल कराएगा। You install, you download and then you double click on it। करेक्ट। आप इस पे जाओ और डबल क्लिक करो। होल्ड ऑन, wait, let it say complete। So once it is completed, you go to that file, double click and simply say next, 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 next. Don't change any option. Simply say next, 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 and it will automatically install and it will change the path also। करेक्ट। जो path हमें जो हमारे environmental variables होते हैं ये उसको भी अपडेट कर देगा। You don't need to do anything like that। Is that clear to all of you or no? Yes sir, clear। Once you download Yes, and install node, करेक्ट। अगेन मैं अभी आपको एक YouTube ट्यूटोरियल दूंगा मेरा खुद का रिकॉर्डेड, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है। So we'll see there। I mean I'll send you that and you can go through with that as well। Again as I said, तुम्हें ट्यूटोरियल की भी जरूरत नहीं है। You just simply click on that icon, जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसको डबल क्लिक करो एंड जस्ट सिंपली से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तुम्हें कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करना। You don't need to choose any option। So now once you install node, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि नोड इंस्टॉल हो गया। So you go to command prompt and try to search node। So see, I am having node app। See, देखो, correct or no? Yeah. Yes sir। Yes, sir. Correct। So this means you have node installed in your system। And see my version, I have installed v14, means I have the latest version, not automatically recommended version, sorry, already I have। Okay, Tim, clear or Okay, not? Yes sir, Yes, sir। clear। Right? Okay, once you install node, then what you're supposed to do is now you're supposed to install Angular। अब आप Angular install करोगे। कैसे install करोगे? Let's go back to the site and यहाँ से कमांड कॉपी करो, because अब आपके पास तो node installed है। So now you can open command prompt। How to open command prompt? You say control, you can always say Windows and search for CMD, right? So you'll get the command prompt। ठीक है, you will get the command prompt। Clear है? Sir. Team, Yes, is it sir। clear or not? Yes sir, Hit clear। window button, I mean here, this one here, you click here and type CMD। आ गया command Yeah, prompt? Click on it
Now command prompt in front of you, right? अब आपने ये कमांड फायर करनी है, npm install -g @angular/cli. अब इसका मतलब समझ लो जल्दी से. npm means hey package manager, install, correct? Install what? Install Angular CLI. It's a framework, so Angular CLI framework जो है इसको install कर दो. कैसे? -g means globally. -g means globally, मतलब आपके कंप्यूटर लेवल पे ग्लोबली, करेक्ट, अपने सिस्टम लेवल पे इसको इंस्टॉल कर दो. क्यों ग्लोबली? क्यों? व्हाई ग्लोबली? So that you don't need to install it again and again for every project. Okay? Yes, sir. Okay? Yes, sir. So there's two version of Angular. One which comes with your project locally, and one this globally what you install. So always install Angular globally. So if I say enter, now I've already installed Angular. So what it will do? Either it will update, either it will install if I don't have the Angular version, or it will update the latest one. I see. One second. What happening? Hello. Yes, sir. Yes, आवाज आ रही Yeah. है. Yeah. Are you able to see? Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. See Yes, sir. Yes. what it has. It has installed the latest version of Angular, which is Angular 12. As of now, 11 is going in the market. 12 is the beta version. People have not started, company has not started working on it. But because it is available, so it is install the 12 version, Angular 12 version over here. Okay? Okay, sir. team? Now Angular and Node both are installed in your system by now. Okay? So what next? अब क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? Sir, we'll create project. Create a project. Packages. Correct. So what is the command for creating a project? That also they have mentioned here. So this is how you will be creating the project. Getting your point or no? ng new my app. So let's see what does that mean. सबसे पहले अपना फोल्डर्स चूज कर लो कि कहां पर तुमने प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हारी रिपोजिटरी फोल्डर कौन सा है. So say मेरे को C ड्राइव में नहीं बनाना, so let me go back to my D drive. Oh, sorry. Sir, capital D, capital D. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. Capital D in the folder. Backslash. No, sir. Sir, C के बाद Sir. वो लगाना है आपको. Sir, C capital कॉलन D and लगाना है सर. colon. C के बाद कॉलन. कोई भी हो, D के बाद कॉलम लगाना. D होगा ही नहीं सर, आपके पास है ही नहीं दिया. सिस्टम में दिया नहीं है. So CD, then space, then drive name, then colon. सर वो आपके में D है नहीं. एक्चुअली में आप माई कंप्यूटर ओपन करिए, आपके में D नहीं होगा. Correct. I don't have D. Yes, sir. Absolutely correct. So let's go back to training folder if I have. Yes, I do have a training folder. Okay. So otherwise simple D press करके अगर तुम कोलन लगा के एंटर करोगे तो तुम D drive में पहुंच जाओगे. देखो बोल भी रहा है. This command is correct. It says the system cannot find the drive specified. D drive is not there. So simple D कोलन करके एंटर करोगे डायरेक्टली इस ड्राइव में पहुंच जाओगे. Okay. So training folder में पास है. So I'm just making this one as a repository. तो मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाऊंगा. Do remember इसके अंदर प्रोजेक्ट बनेगा. Correct? So my command is ng. What do you mean by ng? What does ng stands for? Sir, Angular. Anyone else?
New group. Anyone else? Huh? Okay. New group. NG stands for Angular. NG stands for Angular, correct. You're right. NG stands for Angular. So NG new. New means create new project. NG means hey Angular, because Angular is what? ये तो बताया था. Angular क्या है? CLI, command line interface, right? You need to type commands. So first command is to create new project. So I say ng means hey Angular. I'm talking to framework now. I'm talking to Angular framework now. So I say hey ng means hey Angular. Ng Angular. New means create new project. Followed by my project name. What project I wanted to, what is the name I wanted to give? So I say June. Today is June 4th, no? So June 04. Okay. July 4th. That is the, huh? Sir, July What 4th. July 4. July 4th. Sir. Simple, I would say basic 0407 DDMM. Okay, so this is my project name. This is my project name. Okay, so enter. Now what will happen? Now Angular framework, not Node, Angular CLI. It is going to create a new project for me, new Angular based project for me, and the project version would be the same as my global version. So this is the first question it is asking, because it is CLI, command line interface. So it is going to ask me through command. ये मुझसे command के through पूछेगा. Yes or no, 1 or 2, right? इस तरह से 0 or 1. I mean 99.9% it will ask you yes or no, y and n करके. So would you like to add Angular routing? Yes or no? I don't know about routing. So say n, enter. Then it says which kind of style sheet you want to add. So do you know about SCSS, SASS, less? No, sir. Have you heard about it? इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर्स. प्री प्रोसेसर जैसे किसी मूवी का प्रीक्वल बनता है ना, प्रीक्वल. Yes, sir. तो प्रीक्वल क्यों बनता है, क्यों बनाते हैं प्रीक्वल? ताकि सीक्वल को ढंग से एक्सप्लेन कर सके. करेक्ट. यस. करेक्ट. कि जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा उसको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें सब ये सारे जितने एक्टर्स हैं या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, ये ऐसे कैसे पहुंचे. करेक्ट. इनके साथ क्या हुआ था, तो इसलिए हम प्रीक्वल बनाते हैं. सिमिलरली दीज ऑल आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर्स. मतलब हम इसमें स्टाइल से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इनहेरिटेंस लेके आते हैं. सोचो ये सब काम हम स्टाइल्स में करते हैं, तो ये सब हम प्री प्रोसेसर में कर सकते हैं. तो हम प्री प्रोसेसर में करते हैं एंड देन प्री प्रोसेसर फाइनली रेंडर अ CSS. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? जैसे आपने जावा में या PHP में कोड लिखा, क्या आपकी मशीन, क्या आपका ब्राउजर जावा और PHP समझता है? No, sir. नो सर. तो क्या होता है, क्या बताया था? सर्वर जो है जावा फाइल को, PHP फाइल को कन्वर्ट करता है, करेक्ट, कंपाइल करता है, करेक्ट, एंड फाइनली HTML और जावास्क्रिप्ट में वो रेंडर करता है. करेक्ट. सिमिलरली ये भी वही है, प्री प्रोसेसर. इसको भी आप प्री प्रोसेसर, इसीलिए इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं कि आप SCSS में, SASS में या लेस में, राइट, आप अपना पूरा प्रोग्रामिंग करते हो स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली, स्टाइल्स के अराउंड. करेक्ट, स्टाइल्स. और फाइनली ये फाइल्स जो है कन्वर्ट हो जाती है CSS के अंदर. कास्केडिंग स्टाइल्स जिसको हम बोलते हैं. तो अभी हमें इसकी नॉलेज नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमें CSS ही चाहिए. वी नीड CSS, प्लेन CSS in our project or for our project. So I say enter. I have chosen through arrow key, up down arrow key, and say enter. So after these two questions, it has created these files. ये सारी फाइल्स बना दी, प्रोजेक्ट फाइल्स बना दी. देखो उसमें पैकेट और जेसन में बनी होगी. Can you note it down where it is done? पैकेज बनी तो होगी. ये रही 1 2 second line. Second. ये पैकेट और जेसन देखा कि नहीं? Yes, sir. ये बन गई, ये प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट बन गई है. एंड कैन यू टेल मी नीचे क्या हो रहा है? इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ये क्या हो रहा है?
जो हमारे पैकेज बता सकते हो क्या हो रहा है? सर जो पैकेज जेसन के अंदर होंगे उसे इंस्टॉल पैकेज कर वो उसको इंस्टॉल कर रहा है रिक्वायर्ड अभी होंगे हमने पढ़ा ना, हम क्या कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, हम क्या कर रहे हैं? सर So it is searching the packages what we need. हमने to install. अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट केमिस्ट को दे दी है या अभी नहीं दी है? वो उसमें दे सर्च दिए कर रहा है कौन कौन सा पैकेज के अंदर है। नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। हमने अपनी Yes, sir. प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट केमिस्ट को दे दी है या नहीं दी है? Yes sir, दे दी है। दे दिया सर ऑल ऑफ यू, यस सर दे दिया माय आंसर इज सिंपल, यस और नो। आई जस्ट वांट यस और Yes. नो। ओके, अब इसके बाद Yes, केमिस्ट sir, क्या yes. कर रहा है? अब केमिस्ट क्या कर रहा है? कर केमिस्ट रहे हैं। ढूंढ रहा है अपनी रिपोजिटरी में, यस करेक्ट, सर और मेडिसिन ला के रख रहा है, जा रहा है, उठा रहा है, ला के रख रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर एनपीएम क्या कर रहा है? सर लुकिंग फॉर द Searching पैकेजेस जो पैकेजेस, हाँ लुकिंग फॉर पैकेजेस, जो पैकेजेस यहाँ पैकेट और जिसमें मेंशन है वो पैकेजेस, ये जो एनपीएम पैकेज मैनेजर है, मतलब नोड जो है, नोड पैकेज मैनेजर जो है, ये उन पैकेजेस को अपनी रिपोजिटरी में ढूंढ रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। ढूंढ रहा है, डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ये डाउनलोड तो होगा ना पहले, डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। कहाँ, वेयर? केमिस्ट तो तुम्हारे को एनवेलप में देता है, ये कहाँ इंस्टॉल कर रहा है? सर हमारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में। कहाँ पर? प्रोजेक्ट में कहाँ? प्रोजेक्ट जिस डायरेक्टरी folder- हम लाइब्रेरी में सी जो ड्राइव पैकेज में, हमारे सी ड्राइव में, करेक्ट, ट्रेनिंग फोल्डर, इसमें मेरा एप्लीकेशन क्या था, ये रहा बेसिक 0407, करेक्ट। अब बताओ कहाँ डाल रहा है पैकेजेस सारे? Sir, node मॉड्यूल पैकेज folder ठीक है, अब देखो Yes, sir. डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, करेक्ट। इतने सारे पैकेजेस थे जो एक एंगुलर एप्लीकेशन को, बेयर मिनिमम एंगुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, इस तरह उसने यहाँ पर डाउनलोड कर दी। ये सारी मेडिसिन तुमको एनवेलप में, इस एनवेलप में तुम्हारे केमिस्ट ने दे दी है। मींस ये सारे पैकेजेस जो ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड पैकेजेस थे, ये सब के सब नोड ने या एनपीएम ने, नोड पैकेज मैनेजर ने तुम्हारे नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर डाल दी। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. यस सर ठीक है। अच्छा, अब अपना केस स्टडी भी देखते हैं। सपोज ये हो गया पैकेजेस इंस्टॉल सक्सेसफुली। मैं जब कंट्रोल सी करता हूँ ना, तो मैं किसी भी एग्जीक्यूशन को रोक सकता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं इसको नो 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 दैट्स इट, और नहीं चाहिए। तो जब हम CLI में काम कर रहे होते हैं तो कंट्रोल सी इज गोइंग टू टर्मिनेट द जॉब। इफ आई से यस, इट विल टर्मिनेट। ओके, अच्छा, अब पैकेजेस इंस्टॉल हो गए सक्सेसफुली। नाउ व्हाट आई शुड डू? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को हमेशा इनवेरिएबली स्टार्टिंग के जो फर्स्ट डाउट्स होते हैं ना, सबके ये होते हैं, सर हम npm इंस्टॉल कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, हम जो है कमांड फायर कर रहे हैं प्रोजेक्ट चलाने की, हो नहीं रही, क्योंकि उन्होंने ठीक से सुना नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये जो तुम्हें दिखा रहा हूं करके, ये ऑलरेडी 500,000 साइट्स पे होगा ऑलरेडी, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द साइट्स, करेक्ट? दैट्स आई एम सेइंग, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। नाउ यू टेल मी, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं? मैं कहां पर हूं बेसिकली अभी, राइट नाउ वेयर आई एम? Current folder. आप किस फोल्डर में? प्रोजेक्ट फोल्डर जो मैंने बनाया। और से बोलो, स्पीक लाउडली। सर जो प्रोजेक्ट Folder के फोल्डर अंदर कहाँ पैकेज इंस्टॉल किए? मैंने पूछा मैं किस फोल्डर में हूं, मैं किस पोजीशन पे हूं इस टाइम पे। आंसर, आई मीन डू द राइट आंसर ना। ट्रेनिंग फोल्डर है सर, ट्रेनिंग फोल्डर क्या है? मैंने क्या बोलता? ट्रेनिंग फोल्डर क्या है मेरा? रिपोजिटरी, करेक्ट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, am I in my project folder? Yes or no? यस सर नहीं, Yes, मैं sir. प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं हूं। कहां हूं मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में? मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या है? सर बेसिक बेसिक 0407। यस सर तो मैं हूं, वैसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं अपने प्रोजेक्ट में हूं? Am I in नो my सर project? नो सर So let's go to my project. CD basic correct 0407 enter। क्या मैं अब अपने फोल्डर में हूं? अपने यस प्रोजेक्ट में सर हूं? अपने प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है, क्लियर है? वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पे। मैंने केस स्टडी बताया था, व्हाट इफ यू लॉस्ट योर मेडिसिन, व्हाट इफ
you lost your medicine. Let's do the same thing here. Let's say मेरा node module folder जो है मैंने delete मार दिया. Okay. थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. But let's see this process. मैं तुम्हें सिर्फ वही थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए ब्रेड एंड बटर है. समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर. Yes, sir. तो साइट्स होती हैं जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होते हैं उनमें डायरेक्टली तुम्हें बताएंगे ऐसे इंस्टॉल कर लो और काम करना शुरू कर दो. बट वहां तुम्हें एरर्स हैंडल नहीं करने बताते. करेक्ट? जो बहुत जरूरी है. वहां तुम्हें इश्यूज नहीं बताते. वहां तुम्हें प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं बताते जो तुम्हें एक्चुअल प्रोग्रामिंग में पता होने चाहिए. राइट? What kind of mechanic you are if you don't know how an engine mechanism work? Yes or no? Yes sir. Agree? Yes sir. What kind of mechanic you are or engineer you are if you don't know the background process? Right? Right sir. Yes, sir. तो तुम्हें अंदर का तो पता होना चाहिए कि कहाँ कब कैसे एरर आएगा. अब लो तुम्हारा नोट मॉड्यूल फोल्डर उड़ गया. अब क्या करोगे? तुम्हारी मेडिसिन डंप हो गई. अब क्या करोगे? क्या बताया था हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट विल डू? तो फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे हाँ करने के करेक्ट, रिक्वेस्ट करेंगे. एग्जैक्टली. सो रिक्वेस्ट मतलब लो मैं आ गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि रिक्वेस्ट तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ नोड को कमांड लाइन के थ्रू. राइट? अब बताओ मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा उससे. तुम केमिस्ट से क्या बोलोगे? जो भी आपने जो करेक्ट. कहानी थोड़ा सुनाओगे. उसको क्या बोलोगे तुम? यू विल हैंड ओवर द प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट टू हिम. करेक्ट? एंड व्हाट यू विल टेल? ये मेडिसिन दोबारा से. यस और नो? Yes sir. यस सर. तो मेरा भी नोट मॉड्यूल फोल्डर खाली हो गया. तो मैं भी क्या बोलूंगा? इंस्टॉल अगेन. सो np is hey node package manager install. अब ये नोड पैकेज मैनेजर क्या कर रहा है? इंस्टॉल कर रहा है. बट कैसे इंस्टॉल कर रहा है? क्या कर रहा है वो? बैकग्राउंड प्रोसेस क्या चल रहा है? जो मिसिंग है वो उसको इंस्टॉल करेगा. नहीं, मिसिंग तो सारा मिसिंग है ना. इसको पूरा फोल्डर डंप हो गया. तो ये कहां से रीड कर रहा है? वेयर द प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट? Sir, repository से. It is reading from packet.json. Prescription list. Listen to me carefully. Prescription list. Where is the prescription list? Packet.json file is a prescription list. तो अब जब मैंने कहा npm install, मैंने कहा सब इंस्टॉल कर दे, तो कहां से रीड करेगा? Where? It will read from packet.json. तो ये वहां पर सारे पैकेजेस लिखे हैं. लो उसे भी खोल के दिखाता हूँ. So let's go to see packet.json. Correct? Yes, Right sir. click. Let me open it in Notepad++. Okay. तो ये देखो पैकेजेस. क्या पैकेजेस हैं? Angular animation, common, compiler, core, form, platform browser, right? RxJS, your Angular router, TSLib, correct? नीचे आते हैं dependencies में आपकी TypeScript, development kit, correct? TypeScript version 4, Karma, Jasmine, जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट केसेस के लिए होता है. राइट? ये सब तुम्हारी जो है यहां से यहां तक, ये सब तुम्हारी जो है ये तुम्हारे सारे पैकेजेस हैं जो चाहिए. और ये नोट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं. अंडरस्टूड और नॉट? यस Yes sir. होने दो से. Till the time it is happening, give me just 2 minutes, less than 2 minutes. Okay, I'm coming back in a minute. Till that time, you just watch. Okay sir.
Excuse me, sir. Sir, enough is today. सर कहीं गए हैं लग रहा है मुझे भाई। अरे ये सेशन कितने बजे तक का है? 6 बजे तक का है क्या? हेलो कोई सुन रहा है मेरी आवाज को? हेलो 6:30 तक session है। Yes, Janki, बोलिए। सर ये 6 o'clock तक का है Actually, क्या? session is up to the topic. Just wait for a while. Session would be end up to the topic. Wait. Okay. Hi team, I'm back. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What happens is, it keeps on running, but after 2, 3 minutes, 4 minutes, when you see it's stuck, not moving anywhere, just say Control C and or Enter, so it will come back again. It's almost at the end, almost completed the installation. Okay, till that time, we see how we can run the project or what we have in the project. Okay, so in the project, I showed you package.json file, correct? I told you about the node module folder. What is the other important folder? That is your source folder. What do you think the source folder will have? What kind of files source folder should have, according to you? So node module folder will have all the packages, correct? Libraries, correct? Installed in it. But what your source folder will have? What do you say? Okay, so it's installed. Sir, it must contain the logical operations. Huh? Sir, it should contain the logical operations done by our coding. Anything else? So it will be having your source code, the code which you write. So you will be writing your code, correct, inside the source folder. You getting my point? You will be creating your files, yeah, right? All these things in source folder only. You will be adding new files under the source folder only. Okay, got my point? Yes, sir. What kind of files it will be, in which language we will have, right? All these things we'll see in the next session. But let's see, how we can run the project. So as of now, अगर आप देखो तो क्या हुआ है, एक dummy project, not dummy project, we call it boilerplate. We call it boilerplate. Boilerplate मतलब basic project बना के दे दिया, basic project. एक single file, एक single module, एक single component, right? इस तरह से
तुम्हें बेसिक प्रोजेक्ट बना के दे दिया जिसके ऊपर तुम अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करोगे। सो बॉयलर प्लेट प्रोजेक्ट मतलब जैसे स्टार्टअप प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बेस बना दिया एंड नाउ यू नीड टू डेवलप द बिल्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Correct? So Yes, sir. we already got the base project. Correct? We call it boilerplate. So that is there. Now we can create on top of it. Okay. So first of all, before even creating, right? Before even creating a new files or new features, modules, new development, let's see how can we run our project. How can we run our project in browser? चेक करते हैं boilerplate में करके क्या दिया है, बेसिक प्रोजेक्ट में क्या करके दिया है, कैसे रन होगा हमारा प्रोजेक्ट। करेक्ट? लेट्स सी दैट। सो इसके लिए भी तुम्हारे जो package.json है उसी में ही कमांड लिखी हुई है। इफ यू सी द स्क्रिप्ट, what is the script written to start? What is the script written? ng serve. Yes, sir. serve. So let's type that command here, because now node model folder is already installed. हमने node model folder को दोबारा से इंस्टॉल कर लिया है। तो अब जो है हम अपनी कमांड रन करते हैं ng serve, और अब देखना क्या हो रहा है। It will what it will do is it will compile all the source folder file. Correct? सारी source folder files को ये compile करेगा। Correct? Right? ये देखो सबको compile कर रहा है, उनका एक पैकेज बनाएगा और उसे लोकल ब्राउजर पे रन कर देगा। लोकल ब्राउजर पे रन कर देगा। ठीक है? हमारा लोकल सर्वर यहां पर कौन है? हु इज अवर लोकल सर्वर? नोड। नोड इज अवर लोकल सर्वर। हमारा जो एंगुलर डेवलपमेंट सर्कल है वो सर्वर है, वो लोकल सर्वर के मतलब नोड जे सर्वर के ऊपर चल रहा है। प्लेटफॉर्म हमारा नोड सर्वर है, उसके ऊपर हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट रन कर रहा है, फ्रंट एंड रन कर रहा है। सी, एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन होस्ट 4200, लोकल होस्ट 4200। मतलब हमारी जो वेबसाइट है एप्लीकेशन उसका नाम क्या है? लोकल होस्ट, पोर्ट है 4200। तो ये जो एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर है, ये एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर हमारा नोड सर्वर के ऊपर ही वर्क कर रहा है। तो बैकग्राउंड में नोड सर्वर ही है जिसने बेसिक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ऊपर हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट रन कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक बार हम लोग आउटपुट देखते हैं। कहां बोला है? लोकल पे कहां रन कर रहा है? लोकल होस्ट 100। या सो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। बॉयलर प्लेट कोड मतलब जो बेसिक कोड उन्होंने दिया था, जो बेसिक कोड इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो बेसिक कोड लिखा होता है, ये वो कोड है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? ये सब कोड उड़ा देंगे, हम अपना खुद का बेसिक कोड लिखेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोकल होस्ट 4200 पे लोकल पे चल रही है। और कौन चला रहा है इसे? एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर। और एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर किस पर रन कर रहा है? नोड पर। ओके टीम, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. हमने क्या चला है? अभी हमने सिर्फ अपना बेसिक प्रोजेक्ट चला है। बेसिक प्रोजेक्ट में कोई कोड नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ था, ng न्यू बेसिक 0407 के टाइम पे जो बेसिक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ था, ये वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में? इस सब कोड को हटा देंगे और हम अपना खुद का कोड लिखेंगे। विल राइट अवर ओन कोड। ओके, सो ng serve is the command through which you can run your project. Okay? ऐसे ही अगर तुम अपनी एप्लीकेशन कंपाइल करनी है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि एरर्स है या नहीं है, चलाना नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है एरर्स है या नहीं है, तो क्या चलाओगे? What you will run? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को रन करना है कि ये प्रोजेक्ट में कोई एरर तो नहीं है। इसको लाइव सर्वर पे रन नहीं करना, मतलब इसको लाइव ब्राउजर पे नहीं चलाना। सिर्फ ये चेक करना है कि फाइल्स कंपाइल होकर बताएं कि कोई एरर तो नहीं है। ng टेस्ट करके दिया। ng build। तो ng build कमांड क्या करेगा? ng build कमांड विल बिल्ड द कंप्लीट फोल्डर, करेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट, और तुम्हें एरर्स बता देगा कि यहाँ इस लाइन पे एरर्स है।
और एनजी टेस्ट जो है वो तुम्हारे यूनिट टेस्ट केस रन करता है. आई एम 100% श्योर you don't know what is unit test case, so let's not go about it. I mean abhi first how to install Angular, run Angular में ये यहाँ तक बहुत है. I mean let's not go more into it, वरना confuse हो जाओगे. Is that okay to all of you? हम यहाँ पर close करें इसे. Yes, sir. Can you also do the same thing at your end? I will immediately host this video on YouTube. Correct? तो क्या आप लोग इसको अपने end पे practice करोगे? Yes, sir. सर मेरा रन हो गया सर, मैंने कल पे देख लिया. Good, very good. But can others also do that, please? Yes, sir. I have done also. I have done also. So please Yes, sir, finish yes, sir. this much at your end. I will Okay. host the video immediately. I mean, within 1.5 hours you will get it. But how you will get it? Okay, I'll send it to Deepa, or I'll send it in the group. Okay, WhatsApp group. You all are there in WhatsApp group, right? Yes, sir. Correct. Okay. So let me put it over there. Right, team? Okay, sir. So any question, any doubt you have? No? No, sir. एक बार दोबारा से इस वीडियो को, इस सेशन को दोबारा से एक बार अपने एंड पर रन करना, देखना. अगेन डोंट जंप इनटू हाउ पार्ट. मैंने कहा ना कि देयर आर 500,000 साइट्स ऑन गूगल, जहां पर जो मैंने 1 घंटे में तुम्हें बताया, ये उन्होंने 10 मिनट में सिर्फ साइट पे लेके बताया, ये कमांड रन करो, ये कमांड रन करो, ये कमांड रन करो, एंड योर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट. ये सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम है, नॉट मोर देन दैट. बट आई हैव इन्वेस्टेड व्हाट 1 hour 45 minutes, स्पेशली 1 hour 15 मिनट तुमने वेट किया था, 1 hour 25 minutes, 15 minutes, 30 minutes, just to explain the code behind scene. I mean, what is happening in the background. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कौन सी चीज कहाँ किस लिए इंपॉर्टेंट है. You getting my point? Yes, sir. That you will not find on Google. Okay. Yeah. So that's what I'm saying. Please go through with this video again and go through with the video only. Don't search on YouTube कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और हाफ एन आवर में खत्म कर दिया, बोला सर हमारे से तो हो गया. Okay. ठीक है. See you in the next session. Right. Till then, stay safe. Okay. And please practice. Please follow Okay, this. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir.